Hello, my dear students of class 4th. Today we will discuss practice questions of chapter 4 Human Needs. So let's get started. Question number 1. Which of the following statement is incorrect? Option A. Lycra is a synthetic fiber. Yes, this statement is correct. Lycra is a synthetic fiber. इसके अलावा polyester, rayon and nylon are other synthetic fiber. Option B. Dark colored clothes should be dried in direct sun. दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट क्योंकि डार्क कलर के क्लोथ अगर डायरेक्ट सन में अगर सुखाएंगे तो वो जल्दी फेड हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑप्शन ए नाइलॉन, ऑप्शन बी सिल्क, ऑप्शन सी वुल, ऑप्शन डी कॉटन। इसमें आप क्या देख रहे हो, सिल्क, वूल एंड कॉटन आर नेचुरल फाइबर्स बट नाइलॉन इज सिंथेटिक फाइबर. So option A is odd one out. So option A is correct. Question number 3. The people shown here belongs to the states of dash. पिक्चर में आप देख रहे हो कि men wear धोती कुर्ता and women wear white sari with red border. So this dress is of West Bengal. So option B is correct. Question number 4. Select the option that on unscrambling gives the name of a clothing item worn in winters. इन ऑप्शंस को आपको अनस्क्रैम्बल करना है और बताना है कि विंटर में इनमें से कौन सा ड्रेस पहनते हैं। एक ऑप्शन ए अनस्क्रैम्बल करने के बाद ये मफलर बन जाएगा एंड ऑप्शन बी इट बिकम्स स्वेटर जब अनस्क्रैम्बल करेंगे एंड ऑप्शन सी इट बिकम कार्डिगन. सो मफलर, स्वेटर एंड कार्डिगन, all clothes we wear in winter. So all of these. Option D is correct. Question number 5. Clothes can be protected from insects by placing dash between them. Option A orange peels. Option B neem leaves. Option C coriander seeds. Option D both B and C. So हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था क्लोथ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वी यूज़ मोथ बॉल्स और नेप्थलीन बॉल्स और नीम लीव्स. सो ऑप्शन B is correct. Question number 6. The dress shown in the picture is known as dash and is traditional dress of dash. Option A kimono Australia. Option B hanbok Japan. Option C kimono Japan. Option D none of the. Option C is correct. Kimono Japan. जापान में इस तरह का ड्रेस पहनते हैं. It is like a gown. बच्चों आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि हनबुक कहाँ का ड्रेस है. Question number 7. Which of the following is an incorrect statement? Option A. We should not leave toys on the floor after playing. That statement is correct. Option B. We should not mop the bathroom after taking bath. This statement is incorrect. We should always mop the bathroom floor after taking bath. So option B is correct. Let's move on. Question number 8. Which of the following statements are correct? 1. Silverfish and moth can damage the clothes. Yes, this statement is correct. Statement 2. Mundu is single piece cloth or garment worn in Kerala on the lower portion of the body from waist to the feet. This statement is also correct. Statement 3. Mango leaves can be put in the fold of the clothes to protect them from being damaged. दैट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. मैंगो लीफ यूज़ नहीं करते, हम नीम लीफ यूज़ करते हैं, क्लोथ्स के बीच में रख देते हैं टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंसेक्ट्स. स्टेटमेंट 4. सिल्क क्लोथ शुड बी वॉश्ड विद जेंटल सोप और कैन बी ड्राई क्लीन. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. सो 1, 2 and 4 statements are correct. So option C is correct. Let's move on. Question number 9. People wear different clothes depending upon the climate and cultural tradition of the place they live in. Traditional dress of Maharashtra consists of. अब option A धोती कुर्ता and नवारी साड़ी. This is the right option. Option A is correct. Question number 10. Select the correct option to identify the states, union territories to which the people shown here below. अब आपको नंबरिंग दी है, 1 पे आइडेंटिफाई करना है ड्रेसेस. ये कहाँ की है? 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली. तो 4th हम देख रहे हैं इट इज़ ऑफ पंजाब. बच्चों पंजाब का ड्रेस इजीली आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं. तो हम देख रहे हैं कि फोर्थ नंबर पे ऑप्शन बी में 4 दिया हुआ है, 4 नंबर पर पंजाब दिया हुआ है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट.
Question number 11. Match column 1 with column 2 and select the correct options. Column 1 को column 2 से मैच कराना है आपको। ए पे दिया हुआ है डर्टी क्लोथ्स, तो डर्टी क्लोथ्स का क्या हो सकता है? मेक यू फील कंफर्टेबल, ये नहीं होगा। कैन मेक यू सिक, डर्टी क्लोथ पहनने से हम सिक हो सकते हैं। सो ए का टाइट क्लोथ्स, टाइट क्लोथ्स का हमने जो 1 पढ़ा था, मेक यू फील अनकंफर्टेबल, सो बी का 1 हो जाएगा। अब सी पे है आपका वार्म क्लोथ्स, तो वार्म क्लोथ्स प्रोटेक्ट यू फ्रॉम रेन, ये तो हो नहीं सकता। 4 प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोल्ड, सो सी का 4 हो जाएगा। कॉटन क्लोथ्स डी। नेक्स्ट कॉटन क्लोथ्स का क्या हो सकता है? मेक यू फील कूल, सो डी का नंबर 5 हो जाएगा। ई वाटर प्रूफ क्लोथ्स, वाटर प्रूफ क्लोथ्स हम कब पहनते हैं? रेन के टाइम पे, तो इसका ई का 3rd हो जाएगा। प्रोटेक्ट यू फ्रॉम रेन, सो ई का 3 हो। बच्चों एग्जाम में आपको मैच वाले क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, आपको साइड में जो उसकी का मैच है वो साइड में लिख लेना है, फिर आपको मैच कराने में इजी होगा। फिर हमने जो आंसर निकाला है ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 5 एंड ई का 3, ये सी ऑप्शन में है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12. अप्लाई ए पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा विथ वाटर ऑन द अफेक्टेड पार्ट इफ ऑप्शन ए a bone is broken, option B someone bleeds from nose, option C someone are bitten by a wasp, option C both A and C. Option C is correct. If someone is bitten by an insect like a bee or wasp, apply a paste of baking soda with water on the affected parts, give relief. Question number 13. Read the given sentence and select the option that correctly fill in the blanks. Men of Maharashtra occasionally wear a turban called dash, and a woman of Maharashtra wear sari known as dash. तो men जो टर्बन पहनते हैं, जो सर पे वेयर करते हैं कैप, उसको कहते हैं फेटा। फेटा को पटका भी बोलते हैं। और नवारी साड़ी पहनती है महाराष्ट्री वुमेन। नौ मीन्स होता है 9 और यारी मीन्स यार्ड, तो नौरी साड़ी जो होती है ये 9 यार्ड साड़ी होती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14. रिफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इस फ्लो चार्ट को हम देख रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले एक्स वाई जेड आइडेंटिफाई कर लेंगे। टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर, नो ये नेचुरल फाइबर नहीं है, दिस मीन्स इट इज एक्स इज सिंथेटिक फाइबर। अब हम वाई देखते हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर, यस ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, तो वाई एनिमल से ऑब्टेन नहीं हो रहा है लेकिन ये नेचुरल फाइबर है, दिस मीन्स वाई इज प्लांट फाइबर। ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, यस, तो जेड में भी वूल और सिल्क। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। ऑप्शन ए एक्स कुड बी यूज टू मेक रेन कोट, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि एक्स क्या है? सिंथेटिक फाइबर and it is used to make raincoat, that statement is correct. Option B, y could be obtained from stem or fruit of plant, ये भी सही है। Option C, z could be obtained from an insect, this means z is silk. Option C is also correct. Option D, both y and z give smell of burning paper on burning. जब प्लांट फाइबर को बर्न करते हैं तो बर्निंग पेपर की स्मेल आती है, और जब सिल्क बर्न होता है इट गिव्स स्मेल ऑफ चेर्ड मीट। इसका मतलब ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। सो यहाँ आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15. भूमि रीड द वेदर फॉरकास्ट ऑफ द कमिंग वीक ऑफ जुलाई एज शोन हेयर, विच ऑफ दीज आइटम विल मोस्ट प्रोबेबली बी यूज बाय हर इन सच वेदर। मंडे को रेनी शो हो रहा है, ट्यूसडे को भी रेनी, वेडनेसडे को पार्टली क्लाउडी, थर्सडे को क्लाउडी, फ्राइडे को पार्टली क्लाउडी। तो दिस मीन्स कि रेनी सीजन वाला ड्रेस यूज होगा। तो ऑप्शन ए में अम्ब्रेला, रेनकोट एंड वुलन सॉक्स दिए। वुलन सॉक्स है इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी रेनकोट, गन बूट्स एंड वुलन ग्लव्स, इसमें वुलन ग्लव्स आ गया, सो बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सी रेनकोट, अम्ब्रेला एंड गम बूट्स, it is used in rainy season. So option C is correct. For getting more such videos, don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.